Gita, first chapter, text number 23. Okay. तो पहले श्लोका रिसाइट करेंगे, then मंगलाचरण, फिर उसका translation purport, and then we'll begin with our discussion practically. युत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं यदेते यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रियचिकेशवः. So this is the shloka and the translation and purport. We'll read translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Purport. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans, in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face. Although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So topic is wars and women, right? किसको किसको लग रहा है इसमें हम लोग ये मतलब टॉपिक से ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा ना किसी को that we are telling that the cause of war is women. ऐसा लग रहा है किसी को? नहीं ना? Because there is an and, right, in between. So these are two different things. We'll try to understand. So first of all, today's verse, what is said is that there is a special word. There's one word which Srila Prabhupada writes, or here it is said, Durbuddher, right? So first we'll expand on that particular word and what is actually Durbuddher. Okay. So what was Duryodhana trying to do? Duryodhana was trying to usurp something, which what does usurping means practically? Something which you take by force, right? To usurp, to take into possession by forcing, or with, we can say, that non-ethical manner. It doesn't belong to you, but what you're doing, kind of, you're just, by your power, by exploiting your own power, you're trying to take control over that. So that is what Duryodhana was doing. So now what we see from the Shastra, that wanting to usurp someone else's property is what is called Durbuddhi. This particular function, in this particular context, we are trying to relate that he was wanting to take someone's property. Now if we look at Isha Upanishad, now what is property? Who is that someone? So Isha Upanishad, there's this first shloka in Isha Upanishad, Tena Tektena Bhujita Magrida Kasyasvid Dhanam. Tena Tektena. What is said here that you only accept what is given to you, right? It is not like, let's say two people are sitting, okay, and we are just distributing, let's say after the program someone is distributing prasadam. Now this particular person is eating rice, and the next person who comes a little bit late sits down, has his plate down, and he's just been served rice. This guy is short of rice, the one who was sitting earlier. So what he'll do, just as the rice falls in his plate, he take the rice. Chalo, mera khatam ho gaya, main iska le leta hu. That is not a correct thing, right? That is not a correct thing practically to do. So whatever is given, you be satisfied with that. So this particular verse of Isha Upanishad says what? That whatever is given to you, you accept it. You don't encroach on others' property, right? To be satisfied.
That's the whole point. That is what is said in this particular verse. First chapter. What is the text number? आप में से किसी को पता नहीं है? 23rd. समझ नहीं आ रहा? इंग्लिश नहीं समझ रहे आपको? इंग्लिश कम समझ रहे, मतलब मेरा बोलने का तरीका नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश ही नहीं समझ आती आपको? वही पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ आ रहा है? मतलब मेरा बोलने का तरीका नहीं समझ आ रहा है? मुझे लगा हिंदी का रहेगा। नहीं, usually Thursday classes in English. You can sit with him, he can translate. Om Prakash Prabhu. Someone has problem, he can sit with him and he'll give you the gist of it. And I can kind of, मैं बीच बीच में switch करता रहूँगा. It's not, मेरा classes usually ऐसे ही होता है. I do it in Hindi English so that at least you take back something. It's not like सब चीज bounce हो जा रही है. Okay? So that is the whole point, What we are saying now, everyone is telling, this property, whatever is given to you, you just accept that. Do not encroach on others' property. So who are those others? वो और लोग कौन है प्रैक्टिकली, या फिर ये प्रॉपर्टी बिलोंग किसको करती है? सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द शास्त्र इज दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, right? Everything belongs to Krishna, and we accept whatever is given by him, by his favor, as his prasad. That's it. ना, आप लोग अभी प्रसादम लेने बैठेंगे, उसे प्रसाद क्यों बोला जाता है? इतना इलाबरेट चीजें बन रही है ना, तो आपको भी ऑफर, नो, दैट इज रेमिनेंट ऑफ कृष्ण. सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट. हम लोग कहीं किसी दूसरे होटल से बिरयानी मंगा रहे हैं, कहीं से नान मंगा रहे हैं, कहीं से सब्जियां मंगा रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, क्या आपको? नहीं. You're cooking, you're offering to Krishna, then we are, that is prasad. We accept what is given to us. आप में से कोई ऐसा डिमांड भी नहीं करेगा अभी बैठने के बाद, अरे प्रभु जी इतना सारा वैरायटी है, थोड़ा हलवा आ जाता तो और अच्छा रहता ना. You are accepting practically whatever is given to you, right? So this is the whole point. But there is turmoil in today's society. Why everyone is trying to assert something? हम लोग क्यों चाह रहे हैं कि मेरे को ये मिल जाए ना, जो कि मेरा है नहीं. आप देखेंगे common example, let's say in technological aspect, there's so many things, you can take from devices to softwares which are not actually available in the country, but they are available in some another country, some other specific region. But what are people trying to do? They export it from there. वहां से मंगाएंगे, यहाँ पे उसका जेल ब्रेक करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, सिम अनलॉक कराएंगे, फिर उसमें सिम डाल के यूज करेंगे वो फोन, right? So because this particular education is not given in today's times, you're not talking only about education system in general. हमको कोई सिखाता नहीं है ना ऐसा कि भैया अगर घर में दादा दादी होंगे तो बोलेंगे कि आपको जो मिला उसमें खुश रहिए, लेकिन समझाता कोई नहीं है, बोल करके छोड़ देते. स्टेटमेंट से सब चीजें समझ आ जाती तो बहुत आसान होता ना. और कृष्ण, इवन प्रभुपाद नेवर हैड टू राइट. फिर प्रभुपाद को भी इतने बड़े बड़े पर्पट्स नहीं देने पड़ते, इतनी सारी बुक्स नहीं लिखनी पड़ती, अगर हमको ऐसे सिर्फ बोलने पे समझ आ जाता, राइट? सो दैट इज द होल पॉइंट. नाउ आज के समय पे लोग क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू बिकम इकोनॉमिकली डेवलप्ड, राइट? आज सबसे बड़ी मार तो वही चल रही है ना. हमारा रिसेंटली G20 समिट हुआ था. क्या डिस्कशन होता आपको वहां पे लग रहा है? वहां पे क्या डिस्कशन होता था कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पेमेंट इंटरफेस हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, रुपी का वैल्यू क्या होगा. अभी रिसेंटली व्हाट वाज द डिसीजन कि जो हमारा सो कॉल्ड ऑयल एंड फ्यूल का एक्सपोर्ट्स है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर एज एन करेंसी, इंडियन रुपीज विल आल्सो बी एक्सेप्टेड, राइट? दैट वाज द मेजर चेंजेस. मैं भी थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई एम कंप्लीटली अलूफ, बट दैट वाज द चेंज, राइट? ये एक मेजर ब्रेक था. एंड देन यूपीआई को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे, कैसे एक हमारे चाय वाले के पास भी यूपीआई होता है, राइट? So these are the things. Then what is the backbone of this? क्यों ऐसा हम लोग प्रपोज कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग सब चाह रहे हैं, बट हमको क्या समझना है कि इट इज नॉट पॉसिबल सिंपली बाय एंडेवरिंग. सिर्फ मेहनत करके पॉसिबल नहीं है कि आप इकोनॉमिकली डेवलप हो जाओ. क्यों के लिए you are destined. That is what you have to understand. You are destined to have some portion of it mixed with happiness and distress, right? That is what we have to understand, that something is there, which is allotted to me already. Something is kept on an account which I'll be getting. I don't have to worry about anything else, right? That's the point. Now why people are not understanding this? Where is the lack practically?
because there are four major things, on which a society should operate. An ideal society, the Vedic society, which we call it, or any society, if it operates on these four principles: dharma, artha, kama, moksha. Right? So in today's day and age, first of all, people don't know these things, right? कि ये चार पिलर होते हैं, और जिसको ये शब्द पता है उसको इनके अर्थ नहीं पता। कि चलो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये दिया है, तो धर्म का अर्थ क्या होता है, अर्थ का अर्थ क्या होता है, काम मोक्ष क्या होता है, ये नहीं पता किसी को। Why? Now, if you look at it, if you ask people what is dharma, right? So what answer they'll give? They'll tell that it's kind of a religion. But what is dharma? Dharma means to abide by the orders of the supreme. That is the original meaning. Now, if you see, there are two more terms introduced in this. By the order of supreme. अब देखो सुप्रीम कौन है ये भी पता नहीं, दे डोंट नो हुज लॉर्ड। हवा पानी पेड़ पौधे मान लेंगे किसी को भी कि इनको मान लेंगे, लेकिन when someone comes and says that Krishna is the supreme personality of Godhead, वो नहीं मानेंगे। So first of all they do not know who's supreme, तो उनका ऑर्डर या उनके इंस्ट्रक्शन कैसे पता होंगे लोगों को। भगवद गीता आज के समय में लोगों को बस एक ऐसे बोल सकते हैं ना, एक नॉर्मल चीज लगती है, चलो एक बुक है लिख दी है किसी ने, ये नहीं पता कि इसमें भगवान के संदेश हैं, उनके ऑर्डर दिए गए, राइट? सो दैट इज द होल पॉइंट। सो पीपल एक्सेप्ट धर्मा एज अ सुपरफ्लुअस फेथ, ऊपर ऊपर से कि हाँ ठीक है चलो ये क्या मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई यही है, धर्म का अर्थ यही है और कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके आगे एक और आता है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीता, ये भी एक श्लोक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीता मीन्स व्हाट, टू ओबीडियंस टू गॉड। ओबीडियंस अर्थ समझते हैं? ओबीडियंस का अर्थ क्या होता है? बचपन में बोलते हैं ना, ही इज नॉट ओबीडियंट, यू शुड बी ओबीडियंट। आपको क्या करना पड़ेगा? शरणागत रहना है, एक्सेप्ट करना है जो बोला जा रहा है ना, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना है, राइट? जैसे हम लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है? दवा देता है, तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम 2 गोली रात में, खाने से पहले खाने के बाद में, ऐसे करके वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन आप बोलेंगे आप कि मेरा दर्द थोड़ा ज्यादा है, अभी फिजिशियन ने तो ऐसा बोला, एक काम कर दो 2 की जगह थोड़ा 4 कर लेता हूँ ना, 4 गोली खा लेता हूँ, 4 सुबह 4 शाम 4 दोपहर को। अभी डोसेज तो वैसे भी खत्म करना ही है, डॉक्टर का भी प्रॉफिट है, जल्दी जाऊंगा वापस दवा लूंगा, उनको भी फीस दूंगा, मेरा भी अच्छा, जल्दी ठीक हो गया तो अच्छी बात है, ऐसा करेंगे क्या? So we have to be obedient. Lord says, this is what you are assigned, allocated, you be happy in that. So we have to be happy in that, right? So this is the main thing. Now, अभी भगवान की बात माने क्यों हम लोग, या फिर ये एक्सेप्ट कैसे करें कि मतलब हमारे लिए कुछ अलॉटेड है, क्यों अलॉटेड है, भगवान का पोजीशन क्या है, तो वो भगवान खुद बता रहे हैं। हाउ शुड वी बिकम ओबीडियंट टू लॉर्ड? बाय एक्सेप्टिंग फ्यू थिंग्स। ओबीडियंस का अर्थ क्या होता है? आप क्यों बोलेंगे ना, कैसे बोल सकते हैं आप ओबीडियंट है? जब आप कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं, राइट, कुछ चीजें मानते हैं, कोई आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया आप मान रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है? तो वो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हमको ये एक्सेप्ट करना है कि लॉर्ड इज, ये 3 चीज बस, लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर, लॉर्ड इज द सुप्रीम मेंटेनर, लॉर्ड इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। मतलब परम भोक्ता भगवान है ना, हर एक चीज के नियंता भगवान है, और हर एक चीज का जो भी क्रिएशन है वो भगवान कर रहा है। ये हमको समझना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये 3 चीज यदि किसी व्यक्ति ने समझ ली, मैंने ये नहीं बोल रहा याद कर ली रट ली, समझ ली, ठीक है, समझने का अर्थ कुछ होता है, उसको अपने जीवन में लगाना। ज्ञान विज्ञान 2 अलग चीज होती है। ज्ञान सभी लोगों के पास है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नो स्मोकिंग कैंपेन करेंगे, और फिर जब बाद में जब कैंपेन के बाद जाकर के वहीं किसी नजदीकी दुकान से सिगरेट लेकर के पफ करते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा सेमिनार देंगे नॉन स्मोकिंग के ऊपर। ऐसा नहीं करना, हमको समझना उस चीज को, इसलिए बोला जाता है ना ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ये बोला गया है। तो हमें क्या समझना है कि हमारी पोजीशन क्या। आप देखिए भगवान की पोजीशन पता चल गई, अब चलो पता चल गया किसको फॉलो करना है, लेकिन खुद के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना व्यक्ति को, अपने खुद के बारे में। तो हमें क्या समझना है, दैट वी आर व्हाट, वी आर प्रीडोमिनेटेड, वी आर मेंटेन्ड, ठीक है, एंड वी आर समवन हु शुड बी ओबीडिएंट,
सबसर्विएंट, हमारा सेवक का होना चाहिए, वी हैव टू बिकम सर्वेंट, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। नाउ पीपल डोंट नो अबाउट गॉड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल डू नॉट नो who is God, what is his command, okay, and what is religion, but still they manufacture। भगवान के बारे में पता नहीं है उनको, भगवान क्या कह रहे हैं पता नहीं है, धर्म क्या है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो अपनी मनोबुद्धि से, जो विकृत मनोबुद्धि है, यू नो, परवर्टेड इंटेलिजेंस वी कैन से, उससे क्या करेंगे, हाँ चलो इनको भगवान मान लिया, ये बाबा है, इनको भगवान बना लो, जो ये बोल रहे हैं ये सही है। And they'll create this, they'll manufacture all kind of nonsense, and because these people do not know, who is Lord, what is religion, and you know what is dharma practically. So what do? They manufacture it now, and they manufacture it because of this ignorance, what they are called is durbuddher, दुर्बुद्धेर कहा जाता है, इसीलिए उनको ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया। सिमिलर वर्ड इज सेड इन भगवद गीता, एक ऐसा है सिमिलर ऑन द सेम लाइंस, प्रभुपाद बहुत यूज करते हैं, इसे कहा जाता है मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ क्या होता है, डोंकी, राइट। तो डोंकी को आप सोच रहे होंगे भगवद गीता में भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, या पूरा सेना है, पांडव सेना है, सब चीजें हैं, अब इसमें गधा कैसे आ गया, इतने ग्लोरियस लोगों के बीच में गधे का एग्जाम्पल कैसे आ रहा है। तो गधा क्यों बोला जाता है किसी को, आप लोगों ने गधे का, आप देखेंगे गधे का साइकोलॉजी, वो गधे की साइकोलॉजी समझते हैं, कोई इमेजिन नहीं किया होगा कि हम लोग यहाँ पे आकर के गधे की साइकोलॉजी एक भगवद गीता में, या फिर उसका वे ऑफ लाइफ क्या है वो समझेंगे। तो आप देखेंगे donkey, what he does, he carries load, okay, he's carrying load can comprise of anything, but let's say common example, वॉशरमैन यूज्ड टू हैव डोंकीज, राइट, जो धोबी होता था उसके पास गधे होते थे गांव में, अगर किसी ने देखा हो। तो इस कैरिंग क्लोथ, बहुत सारे कपड़े वो कैरी कर रहा है, बांध बांध के गड्ढे पूरे गांव भर के डाल रहा है उसके ऊपर, बट उसे मूर्ख क्यों कहा गया। देखिए मेहनत करना गलत बात तो नहीं है, वो भी सेवा ही कर रहा है ना, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जो कपड़े धो रहा है, वो मतलब धो रहा है प्रैक्टिकली, धोने वाला तो उसके साथ में, जो कपड़े कैरी कर रहा है उसमें से एक भी कपड़ा उसका नहीं है। एक भी कपड़ा है क्या, गधा कपड़े पहनता है नहीं ना, तो चार साइड से आकाश से ढका हुआ है और कुछ नहीं पहनता। आजकल के लोग पहनाते भी, आप देखेंगे ऑनलाइन, गधे को पाल करके शर्ट पैंट सिला के उसको भी पहनाते हैं, गरीब बेचारा नंगा सो रहा है वहां पे, लोग गधे को कपड़े पहनाते हैं, ठीक है। तो उसके एक भी कपड़े नहीं है, अब वो इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, दिन से रात उसको लेके आ रहे लेके जा रहे, टेकिंग टू एंड फ्रो। He's tired practically by this whole labor. But now what happens is that he's working so hard just for घास के लिए, इतना सा घास मिलेगा उसको, बट उसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं कि ये घास तो मुझको बाहर भी मिलेगा ना, राइट। वो अगर उससे सबसर्विएंट नहीं रहेगा, यहाँ पे तो मार मिल रही है, लात मिल रहा है, इतना भार ढोना पड़ रहा है, ठीक है, इस खेत में नहीं मिला, थोड़ा और ट्रैवल कर लूंगा, पूरा गांव घूमने से अच्छा यहाँ से 1 किलोमीटर वहां जाकर के दूसरी जगह घास खा लूं, इतना आसान। बट उसको ये समझ नहीं आता है कि that he can just get, for what he is working so hard, he can get outside very easily. Similarly, all the people outside, Prabhupada, or in the Shastras, the word karmi is used. One who are very much inclined for sense gratification. So these karmis, they are working day and night outside. Day and night. Why they are working outside? Day and night. And when they come home, what do they eat? 2 chapatis, 4 chapatis. ज्यादा खा पाते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, एपेटाइट रहता नहीं है, रात को लेट आते हैं, रात में ज्यादा खा लेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे काम के लिए, इसलिए 2 से 4 चपाती खाते हैं, है ना। अब if one wants, these particular things, if one wants to meet, let's say, to that particular person, अब ये इतना वर्क कर रहे हैं, अब वर्क कर रहे हैं किसी को मेंटेन करने के लिए ना, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके लिए वर्क करता है ना, वरना व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे पर्सनल मेंटेनेंस तो इजीली हो रहा है उसका, राइट, थोड़ा सा काम करके। So he is actually working hard for his family, for his friends, for his relative, to contribute to the society. But when someone calls him and tells him, do you have time? Can we meet? What he'll say? Sorry, I'm busy. I have to go for work. So that's the whole point.
Why are you so busy? You know, they don't apply this intelligence practically. That if I just want, you know, 4 chapatis, why should I work hard? क्यों इतना मतलब मेहनत करने की अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है? Why? Because they have this one slogan, you know, one take which is on repeat mode. More money, more money, more money, more money, more money. Right? That is the whole thing. And why this more money, you know? Why this more money? For their own personal sense gratification or extended sense gratification. Is the meaning. But what Bhagavata says, Bhagavat means what? Book Bhagavat, person Bhagavat. We can say both of them. What does Bhagavat say? That you know, no, you don't do this. This is not your business. You know, you're not supposed to do this thing in this particular world. You know, there are 4 chapatis which are destined for you, and they'll be provided to you under any circumstance. Huh? That's the whole point. That is what the Bhagavata is saying. And then what he says again is that you shouldn't waste your time. You shouldn't waste your time, you know, on the false notion of this economic development. You know, you cannot get practically more or less than what you're destined to get. उससे कम ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है. So हमें अपना समय कहाँ लगाना है? भगवान को समझने में लगाना है. To understand Krishna. Why Krishna? ये भी कोई बोल सकता है कि क्यों लगाना है भाई. तो उसका भी रीजन यहाँ दिया गया है. श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद, पहला अध्याय 5वां स्कंद, पहला स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 18th वर्स. इसमें क्या कहा गया? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतम् उपरियदः. इसमें क्या कहा गया? ये पर्टिकुलर श्लोक देखेंगे. इसमें कहा गया तस्यैव हेतो. तस्यैव हेतो का अर्थ क्या है? For that purpose only. Now, what is the purpose? Purpose क्या है? ये explain किया गया. Which we couldn't achieve after wandering the whole universe. You know, prayateta kovido na labhyate brahmatam upariyadha. Now, whole universe means what? That right from Brahma, Indra, Chandra, Varuna, right, to the Indragopa. Indragopa एक छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत छोटा सा. ब्रह्मा सबसे बड़े जिन्होंने क्रिएशन किया by the intelligence provided by the Supreme Lord himself, right? ऊपर से लेकर के आप देखेंगे, इसलिए इसके अंदर शब्द यूज किया है. ऊपरी means upper, अधहा means lower, right? ऊपर से नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ही पर्पस के लिए घूम रहे हैं. That is for sense gratification. ऊपर से नीचे तक इंद्रिय तृप्ति के लिए. अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? मुझको तो याद नहीं कि मैं ब्रह्मा था कभी, मैंने कभी क्रिएशन किया. मैं तो इधर पे एक गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी नहीं बना सकता, मैं पूरा विश्व कैसे बनाऊंगा? So then you don't have, you know, kind of, अगर समझिए आपने कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की होगी तो आप उस चीज के लिए हैंकर करेंगे क्या? अगर समझिए कोई जंगल का रहीवासी है, उसके सामने एक सेब रख दीजिए और रसगुल्ला रख दीजिए, लेकिन एक एक करके, ठीक है, दोनों साथ में नहीं रखना. और बहुत भूखा है वो बेचारा, उसके सामने वैसे सेब लाएंगे ना, सेब को लपकने के लिए दौड़ेगा, उसके मुंह से पानी भी गिर जाएगा. रसगुल्ले में उसको पता नहीं, क्योंकि उसने रसगुल्ला कभी टेस्ट ही नहीं किया है. लेकिन अभी जो यहाँ पे है, फ्रूट सलाद भी खाते हैं, उसमें अनार सब कुछ, हमारे स्पेशली डिवोटीज फ्रूट्स अच्छे खासे मिल रहे हैं ना. एप्पल रख दिया सामने और रसगुल्ला रख दिया. अब समझिए वो जो सो कॉल्ड बोल सकते हैं ना ट्राइबल पर्सन है, उसके सामने भी 2 ऑप्शन दिए, ले लो कौन सा चाहिए, तो उसको एप्पल का एक्सपीरियंस है, वो एप्पल लेगा. बट अगर आप लोगों के सामने रख दिया जाए, वो रखने से पहले पैकेट में ही रसगुल्ले पे नजर रहेगी, एप्पल को देख करके साइड कर देंगे, यही वाला चाहिए. रसगुल्ला की तरह उधर ही नजर रहेगा, पूरा बॉडी अलाइन हो जाएगा उससे. यही वाला मैं पूछने था, प्रभु जी क्या चाहिए, पूछने की जरूरत ही नहीं, रसगुल्ला, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट. सिमिलरली हम आज डिजायर क्यों कर रहे हैं? कोई भी बचपन में तो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया ना, बड़े घर में रहना. लोग क्यों डिजायर करते हैं? मुझको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छा सो कॉल्ड लाइफ पार्टनर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ. जीवन में कोई जिस व्यक्ति को लाइफ में कभी कोई अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति मिला नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर भी चाहिए होता है. जिसने पूरा जीवन एक छोटे से घर में सुकून से निकाल दिया, जहां उसको पता मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, फिर भी उसको बड़ा घर चाहिए. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन देयर. आप वहां रह चुके हो, इसके लिए आपके अंदर इच्छा है ना. किसी ने डाला क्या इच्छा? आजकल के डेट में सोशल मीडिया काम कर रहा है वो डालने का सेटली, बट ऐसे कोई आकर के आपको नहीं बोल रहा, बल्कि आप देख रहे होंगे ऑपोजिट
जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो कभी खुश नहीं है जीवन। बट हम लोग उस स्टेज से आ चुके हैं, इसके लिए हमारे अंदर वो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है इन अ परवर्टेड फॉर्म। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो आप देखेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि हम लोग ऊपर से नीचे इसी चीज में भ्रमण कर रहे हैं और किसी चीज में नहीं कर रहे, ये हमको समझना है। बट अ वैष्णवा इज बियॉन्ड दैट। फॉर हिम इट्स ओनली अबाउट सर्विंग कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। दैट्स द होल। नाउ we'll move on to our next thing. This was हम लोग ने एक्चुअल में अभी क्या अंडरस्टैंड किया, दुर्बुद्धेर का अर्थ समझा हम लोगों ने, and how the living entity because of this false notion of proprietorship is kind of engaged हमारे अंदर है कि वो। अभी हम लोग बात करेंगे wars and women के ऊपर। we'll analyze two major scriptures, कि कैसे मतलब ये दोनों लिंक्ड है, रिलेटेड है, या फिर हम इससे बोलना क्या चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 24 जनवरी, राइट? राम मंदिर का इनॉग्रेशन 22 ओके, जो भी वो डिसाइड करने दीजिए मैनेजमेंट को, ठीक है? पास में है अभी डेट। सो वील टेक रामायण का भी पर्सपेक्टिव लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा क्या मतलब समझ लीजिए वो भी एक। सो आप देखेंगे व्हाट इज रामायण। रामायण इज एक्चुअली स्टोरी ऑफ wars and women. That is our today's title. सेम थिंग गोज विद भगवत गीता और महाभारत ऑल्सो, ठीक है? उसको समझेंगे अभी। आप इसको बस प्रेजेंटेशन हमने थोड़ा अलग किया है, ठीक है? कंटेंट वही है। पार्ले जी पहले पेपर के पैकेट में आता था, बाद में उसको प्लास्टिक में डाल दिया, अभी उसको रेड गोल्डन अलग अलग चीजें दे रहे हैं ना, राइट? बाहर का भी हमको पता नहीं, बहुत दिनों से खाया नहीं, अब कौन सा कलर चल रहा है। तो दिस इज द होल थिंग, सो व्हाट इज रामायण प्रैक्टिकली? Ramayana is story of Lord Ram, which leads up to the war. How the war led up actually. शुरुआत कैसे हुई, ठीक है? War का, and about the actual war, right? That is Ramayana. On the same page, everyone. सही बात बोल रहा हूँ ना? यही है ना? कि और कुछ है? यही है, ठीक है? And it is also story of a woman, right? पहला जब मैंने बोला कि रामायण क्या है, if you know what is this, so ओम प्रकाश प्रभु वहां से बोले मदर सीता के बारे में। This is also story of woman, not an ordinary woman, still a woman, okay? A woman. So that is the whole thing. And when we speak about Sita and Ram, what comes first in mind? पहले क्या आता है? हाँ? स्वयंवर। हाँ, बट किस उससे पहले भी कुछ होता है ना, स्वयंवर से पहले प्रेम होगा तभी होगा। लव कम्स इन माइंड। अब कोई भी बोल सकता भाई यहाँ प्यार की बात चल रही है और वॉर भी है इसमें, टू कॉन्ट्रेडिक्ट, उसको भी समझे, ठीक? नाउ इफ यू लुक एट इट, भगवत गीता इज रेड बाय न्यूट्रल स्कॉलर्स। जो लोग सिर्फ सो कॉल्ड बेसिस पर रहते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि इट्स जस्ट अ ट्रीटीज व्हिच इज emphasizing the role of the supreme personality of Godhead in bhakti, right? That is the whole thing. Bhakti is what? Love towards the Lord, right? So then why war? अभी भगवत गीता बता रहा है कि भगवान से हमको प्रेम करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब बोल रहे हैं भगवान। वॉर कहाँ से आ रहा है इसके बीच में, राइट? So that is what we have to understand, that similarly Ramayana is about war and also about women, which means women resemble what in today's day? Love, right? That is a resemblance, लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं, right? If you बोलते हैं ना, एक लक होता है, लेडी लक बोला जाता है, एंड उसको कभी कभार लोग बोलते हैं लव फैक्टर, आपके लव फैक्टर की वजह से आपका फॉर्च्यून बढ़ गया, ये चीज हो। सो इट काइंड ऑफ गोज हैंड टू हैंड, ये जाता है इसके अंदर, आप देखेंगे। सो लॉर्ड रामा ही इज इन लव विद सीता, फर्स्ट थिंग, राइट? सेकंड थिंग इज whole universe is in love with Sita, every one of us, right? Even Ravana is in love with Sita in a perverse manner, okay? That is what we have to understand. Now Ravana wanted to love Sita, but not like Lord Rama. He wanted to imitate him, okay? We have to understand. अभी इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. Now Lord Ram loved Sita, Ravana also loved Sita, because Sita was a beautiful woman and both wanted to love. That's one thing. Now, Rama's attitude was what? To protect Mother Sita
and Ravana's attitude was to enjoy Mother Sita. Very distinct thing, to protect and to enjoy. You might see that there are people who are simultaneously doing so, right? That is what we have to understand. Now, what we derive from this is that Lord Rama's love was pure and Ravana's was impure. That is what we have to understand. So, Mahabharata and Ramayana, both are what stories, these are stories about war occasioned by women. And in each, in both of the cases, there are women, powerful women, not ordinary. इतना बड़ा युद्ध किसी साधारण औरत के लिए नहीं होगा, राइट? गली में आपने देखा होगा एक लड़की के लिए एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हैं, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे महाभारत के स्केल का या फिर रामायण के स्केल का कभी युद्ध हुआ हो एक औरत के पीछे. And just imagine how powerful that woman is. इतनी powerful, and that we have to understand. So now they are these both things, जैसे हमने पहले बोला, they are both about love and war, right? And these things are very contradictory. दो opposite poles बोल सकते हैं, एक north एक south. क्योंकि हम लोग सोचते हैं जहाँ love होगा वहाँ war कैसे हो सकता है, जहाँ war होगा वहाँ love कैसे हो सकता है. That is what we are saying, right? But they are both connected by a string of very high emotion, right? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं सोल्जर का. ठीक है, एक सैनिक होता है. सैनिक को आपको क्या लग रहा है लड़ने पे क्या मजबूर करता है? क्या मजबूर करता है? कोई बोलना चाहेगा कि क्यों बोल, मतलब उसको -35 डिग्रीज -45 डिग्रीज में वो खड़ा है बंदूक लेकर के ना, वहां पे क्या आवश्यकता है? हम लोग यहाँ बॉम्बे में भी कुछ दिन ठंड पड़ना चालू हुई, लोग सुबह जैकेट मंगल आरती नहीं आ रहा कोई, तो कुछ नहीं. यस तुषार प्रभु बोल सकते हैं, बोलिए. Because of their duties, ड्यूटी, अच्छा, the responsibility and duty. see we are having, there are people who have many duties, right? But आप देखते हैं sometimes they fail to carry on the duty, right? That is also one thing, right? Duty is correct answer, it's one aspect, but a driving factor क्या है? Exactly, his love towards the country, right? अब आप बोलेंगे यार ये अपने देश से प्रेम करता तो मारधाड़ क्यों कर रहा है? लॉजिकली साउंड लग रहा है आपको? सेंस बना रहा है क्या कोई? तो प्रेम करेगा यदि कोई व्यक्ति, हम लोग बोलते हैं हमारे दोस्त को यार आई लव यू, मेल फ्रेंड, तो उसको धोना चालू कर देते हैं नहीं, वो बात अलग है, फ्रेंडशिप के साथ साथ वो आता है, बट यू वोंट फाइंड इट, राइट? कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दैट इज व्हाट द सोल्जर इज. सो अब इसमें क्या हो जाता है ना, इन दिस केस both in war and love, when one is very much engaged, he can do what a normal person can't do. सोल्जर का एग्जांपल पकड़ लीजिए, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पास्ट टाइम या फिर इंसिडेंट्स है जहाँ पे ऐसे ऐसे सोल्जर्स जिनकी टांगे उड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जा करके क्रॉल करके उन्होंने कॉन्कर किया है एक एक कैंप को, बेस को, राइट? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. टांगे टूट गई हैं तो भी मिलिट्री रेस में दौड़ रहे हैं, जूते फट गए हैं, सब चीजें हो चुकी हैं, जो भी सिलेक्शन होता है जिसमें भी होता है, दे हैव ओवरकम फिजिकल लेवल ना, उससे ऊपर उठ चुके हैं. पॉसिबल नहीं है नॉर्मल व्यक्ति के लिए करना, बट इसमें क्या कर रहे हो, दे आर सरपासिंग दैट लिमिट, उससे बाहर जा रहे हो, उससे ऊपर जाकर के दे आर एक्टिंग, व्हाई दीज टू थिंग्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे ये तो हमने एक पॉजिटिव साइड बताया, बट दीज टू थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ पीपल. व्यक्ति का सबसे अच्छा चीज भी वो निकाल सकता है, उसको अच्छे से अच्छा भी बना सकते हैं, बनने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, और बुरे से बुरा बनने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं ना. तब देखिए बहुत सारे लोग, if they have unrequited love which is not fulfilled, people suicide, they hang themselves up, right? There have been soldiers who have belonged to a country which has won the war, but when the soldiers came back they were traumatized. Post there is something एक post war traumatic something करके एक syndrome होता है कि ये श्रीलंका में मेजरली आप देखेंगे, श्रीलंका के जो अभी तो वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, बट जिस टाइम वहाँ वॉर चल रहा था वो मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता. आप उनको देखोगे आप बोलोगे क्या पागल है, बट दे वर अ टॉप नॉच सोल्जर. सोल्जर बनने के लिए आसान बात नहीं है, कोई भी नहीं बन सकता ना. सोचिए उतना चीजें वो पार करके, उतने हर्डल्स पार करके, मेंटली फिजिकली फिट होने के बावजूद उनकी ये हालत होती है. So it can be
worst as well as best. That is the whole thing, you know. Now, ये हम लोग ने देखा, but in spiritual world we have to understand, you know, what is in spiritual world there is no war, there's only love. But in material world we can see both, love भी है, war भी है, दोनों दिखेगा आपको ना. Variety is mother of enjoyment. That's the whole thing, what we have to understand. Now, how can love be described then? लव को अगर डिस्क्राइब करना जाए, कोई बोलेगा हाँ मेरे को इसके बॉडीली फीचर्स अच्छे लगते हैं, इसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है ना, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे ही लव बोलेंगे ना. अगर कोई बॉडीली फीचर हटा दो यार, आप में से कोई एडमिट नहीं करेगा कि मैं बोलूंगा ऐसा, लेकिन आप लोग बोलेंगे उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, द वे ही टॉक्स, द वे ही बिहेव्स, द वे ही ट्रीट्स पीपल, ये बहुत अच्छा है. इस पे एग्री करेंगे हम लोग, ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना. दैट इज हाउ आवर लव इज इवोक्ड फॉर अ पर्सन. But Srila Rupa Goswami, you know, he is giving, you know, the symptom, you know, what is dadati pratigrinati guhyamakhyaति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम. प्रीति ना, ये प्रीति के लक्षण है कि प्रेम कैसे जागृत होता है, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप किसी को प्रेम करते हैं. अगर इसमें से ये चीजें नहीं है ना उसके अंदर, then that is just कामा. What is dadati pratigrinati? By giving gift and accepting gifts, right? Dadati pratigrinati guhyamakhyaति पृच्छति, sharing your secret and hearing the other person's secret, keeping it confidential, not, you know, keeping it kind of, you know, not keeping it, और ऐसे जैसे प्रभु जी अभी हरे कृष्ण फोन पे चालू है लाउड स्पीकर पे, ऐसे बताना नहीं है किसी का सीक्रेट, ठीक है. ये ओके, ये है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चिव. We should offer, you know, some eatables, and we should accept some eatables. 6 things, षड्विधम प्रीति लक्षण. This is what you call love, ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से, राइट. अब समझ जाना, यदि कोई दोस्त है जिससे आपको बार बार पार्टी मांगनी पड़ रही है, बिल्कुल प्रेम नहीं है इसमें. क्या दिया है, भुक्ते भोजयते चैव, मतलब वो ऑफर भी करेगा, आप भी उसको ऑफर करेंगे, दोनों रिलीज करेंगे, राइट. तो ये समझना है हमको. सो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, there is happiness, you know, happiness. आप देखें कभी भी आप किसी को फूड ऑफर करिए, मैं एग्जांपल देता हूं, आई एम, यू नो, काइंड ऑफ असिस्टिंग इन वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट फूड फॉर चाइल्ड. हम लोग ट्राइबल एरिया में जाते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, प्रसादम वितरण करते हैं, राइट. और आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, आप में से कोई लोग वॉलंटियर करना चाहें तो आकर के फूड फॉर लाइफ काउंटर पे बस खड़े हो जाइए 15 मिनट के लिए. उनको जैसे गर्मा गर्म प्रसाद का द्रोण मिलता है या प्रसाद मिलता है, दे बिकम रियली हैप्पी, नेचुरल स्माइल. अगर वहां नहीं देखना तो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल भी है फूड फॉर चाइल्ड, उस पे जाइए, वो वीडियोस बना के डाले हुए, कितने खुश हो जाते हैं लोग प्रसाद मिलता है. दैट इज द, यू नो, कैरेक्टरिस्टिक कि आपको इमीडिएट रिजल्ट दिख जाएगा इसका. जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, ये 6 चीज में से किसी एक चीज को, तो आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा. That is the, you know, whole point. Even in Chaitanya Charitamrita there is, you know, description of Chaitanya Mahaprabhu, few descriptions wherein Chaitanya Mahaprabhu is offering prasadam which is lovingly, you know, served to him by his devotees. Devotees prem se Chaitanya Mahaprabhu ko prasadam serve kar rahe हैं, and that, you know, deepens, you know, the relation. ऐसा है. So this is the whole thing. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रेम की बात कर रहे हैं ना, प्रेम है, तो वॉर कहाँ से आ रहा है? Then why there should be war? That's the whole thing. अभी तक हमने शास्त्रों को कोट किया, इससे पहला वाला सेक्शन जो दुर्बुद्धिर और फर्स्ट हाफ हमारा जो सेशन का था, तो उसमें आप देखेंगे अगर तो अलग अलग शास्त्रों से कोट किया गया. लेकिन अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, विल डिस्कस अबाउट सोक्रेटिस. सोक्रेटिस को कोई जानता है? सोक्रेटिस फिलोसोफर थे, बोलते हैं, ओके, द फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर. श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि, यू नो, ही हैज एक्चुअली रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइज्ड. He also describes, you know, he has these 2 quotes, very important. मैंने उसको भी रखा हुआ है यहाँ पे, so I'll just share this. You know, first of all, he says, you know, why are, अभी हमारा wars and women के ऊपर है, right? So ये 2 पॉइंट पे उनके 2 कोट हैं, वो मैं पढ़ता हूँ. Wars and revolutions and battles are due simply and solely to the body and its desire, right? First quote. Second quote is, all wars are fought for the acquisition of wealth, right? 2 quote. तो आप देखेंगे ये 2 चीजें हैं, या तो वेल्थ के लिए या तो बॉडीली पर्सपेक्टिव के लिए वॉर लड़े जाते हैं. बट रामायण दोनों में से किसी पे बेस्ड नहीं था.
ना वेल्थ चाहिए था, ना बॉडी के लिए था. What was, Ramayana basically for protecting Sita, and what Lord Rama said that, in order to uphold the honor of the family of the Raghu Vamsha, Lord Ram says that, ये मैं क्यों लड़ रहा हूँ? Because I want to protect, the honor of Raghu Vamsha, the honor of his family, right? That is the whole point. And Mahabharat war, when we talk about Mahabharat, महाभारत में एक्चुअली में बहुत सारे वॉर हुए हैं, आप देखेंगे बहुत सारे सीक्वेंस है. बट व्हेन वी से महाभारत, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वॉर बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास. दैट्स द होल थिंग, हम लोग कौरव और पांडवों के वॉर की बात कर रहे हैं इसके अंदर. सो दिस वाज बिकॉज दुर्योधना डिनाइड टू गिव एनी लैंड टू युधिष्ठिर महाराज. वो बोल रहे थे मैं आपको इतना भी जमीन नहीं दूंगा. उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा आप पूरा राज्य रख लीजिए, 4 गांव दे दीजिए हमको शासन करने के लिए ना, 4 गांव. तो दुर्योधन वाज सो एनवियस कि उसने बोला मैं आपको 4 गांव क्या, जहां पे आप एक सुई खड़ी कर पाए ना, उतनी जमीन नहीं देने वाला मैं आपको, राइट? ये बोला उन्होंने. तो इसके लिए, एंड देन ये तो एक चीज था, एक पार्ट था उसका, लेकिन मेजर थिंग अभी आएगा. व्हाट वाज द मेन, so one of the underlying thing. Another was that, Bhima vowed to kill, Dushasana. Why? Because he tried to disrobe Draupadi, was actually wife of the Pandavas in front of the whole assembly. So Bhima vowed. He first said that I'll kill you, right? That was one incident. Then second incident is when they were called again, for that gambling match. और फिर सब चीजें हुआ. Then again Dushasana did what? He verbally insulted Draupadi, right? Then Bhima again vowed that I'll kill all the Kauravas, especially Dushasana. So, again, who's the center point? Women. Okay, women. Then, if you look at this thing, then why Draupadi? मतलब अगर इंसल्ट करना है तो युधिष्ठिर महाराज का इतना था ना, राइट? इतना उनका नेम फेम ग्लोरी था, इतने फेमस थे, उनको डिफेम कर देते ना. व्हाई द्रौपदी? द्रौपदी को क्यों टारगेट किया? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज दुर्योधना desired, Draupadi. She was desired by Duryodhana, and he was envious of Pandavas. Why? Because Draupadi was serving Pandavas, but he wanted to be the one who wanted to be served by Draupadi. He wanted to be the one who should enjoy, and now he wanted to enjoy both the thing, kingdom as well as Draupadi. दोनों चाहिए था उसको, ये दोनों मेरे पास होना चाहिए. ओके, दिस वाज फर्स्ट थिंग. अगेन अगर हम लोग सेकंड इसमें जाते हैं ना, सेकंड केस में आप देखेंगे कि दुर्योधना was supposed to marry Subhadra, right? But as soon as he goes for the marriage, Arjuna intervenes, takes Subhadra and goes. ठीक है, बेचारा एक गया, दूसरा भी गया. That is, that is one of the main things. So पूरे इसमें देखेंगे there was wealth involved, there was land also involved. जमीन भी था उसमें, पैसे भी थे. चलो हाँ, उन्होंने पूरे राज्य के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, क्योंकि मेरे को चाहिए, दुर्योधन ने बोला. ये तो ऊपर ऊपर चला. बट देयर वाज आल्सो दिस, प्रिंसिपल ऑफ ऑनर एंड डिसऑनर व्हिच केम अप बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू वुमेन. दुर्योधन ने बोला मेरा तो मतलब नाक कट गया ना यहाँ पे. पहले द्रौपदी नहीं मिली, फिर सुभद्रा नहीं मिली, अब मतलब मैं बदला लेके रहूं, ऐसा बोला. So this was the thing, this is what we have to understand. So this thing actually burns one's heart, when you desire someone and someone else takes it away. Right? बच्चों को देखा है कभी? छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का अगर फेवरेट टॉफी, या आप देखिए रूम में ना 50 खिलौने पड़े हुए हैं उस बच्चे के, उसका एक फेवरेट खिलौना है, खेल रहा है उसके साथ में. बाकी जो 49 खिलौने पड़े हुए हैं, दूसरा बच्चा आकर कोई भी एक उसमें से, उसका कान फटा हुआ है वो खिलौने का, कुछ भी हुआ, लेकिन वो बच्चा आकर अगर वो खिलौना पकड़ लिया ना, अपना जो उसका मन पसंदीदा खिलौना, उसको फेंक करके उसके लिए वो मन पसंद का बन जाएगा. कि हाउ कैन ही टेक दिस थिंग व्हिच एक्चुअली बिलोंग? एनवी आ जाता है. दैट इज द प्राइमरी थिंग, दैट इज द प्राइमरी थिंग. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, दुर्योधन को सपोर्ट भी कौन कर रहा था? was supporting Duryodhana? He was supported by the kings, who were backing up Shishupal.
शिशुपाल कौन है? शिशुपाल का भी मस्त स्टोरी है, ठीक है। तो शिशुपाल गोज टू कुंडीना, कुंडीना राज्य था, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैरी रुक्मिणी, ओके, रुक्मिणी से शादी करने आते हैं। देन कृष्णा कम्स, पुश, रुक्मिणी को लेके चले गए। और वहां पे इतने सारे राजा थे, वो लोग बोले भाई अब क्या करें सबके सवाए हुए एक रानी के लिए। और ये इनका तो मतलब इनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था ना। लॉर्ड कृष्णा ही वाज नॉट, वो बस लेटर पढ़े, भाग के आए, उठा के लेके चले गए, खत्म। ऐसा नहीं कि आ करके बैठे, ठीक है, फेयर कंपटीशन बोलते हैं ना हम लोग कि चलो ठीक है इतने सारे सो कॉल्ड स्टेजेस है, इसको पार करो, ये करो वो करो, फिर देखो, फिर उसके बाद में सबसे नहीं, डायरेक्ट वो बोलते हैं ना हम लोग हेड स्टार्ट, आ करके चीट कोड डाला, तुरंत उठा के लेके चले। तो ये किंग भी डिस्टर्ब थे। अब ये किंग क्या किए, वो असेंबली के किंग ने शिशुपाल को बैकअप किया, और शिशुपाल ने सेम किंग्स दुर्योधन को बैकअप कर रहे हैं, राइट। ये देखना हम लोग। सो this particular war was practically built up, you know, this was built up of all these, you know, various tensions with women being in the center of it, correct. That is the whole thing what we have to understand. So people are just attracted, you know, by the body. अगर आप देखेंगे लोग bodily attraction पे ही वर्क कर रहे हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कोई यंग व्यक्ति 80 साल की महिला से अट्रैक्टेड हुआ हो, ये रीजन से इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। You will find, you know, a person, or you know, a youth or anyone, any person is attracted to a young girl who's, you know, of 20 years or something, right, who's having a beautiful face, like beautiful face practically. But let's say in nowadays they won't be attracted with beautiful face also. If she is having good bodily features, they are attracted. That's your point. So this is the bodily concept of life, you know. And he doesn't, आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस body. So this is the delusion in which a jiva is. तो क्या देख रहे हैं? What is this, you know? मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, बाहर कोई और अलग प्रकार का चीज दिखे। We first of all we do not know that the jiva inside, you know, he is same. हम लोग दोनों सेम है, right? By nature he is a pure devotee of Krishna, right? But we इतने illusion में what we are thinking that he is the body and I am supposed to enjoy that body. That's the whole point, you know. That is why these people are building big buildings, stadiums, mansions, everything. ये सारी चीजें क्यों build up हो रही है? Just to attract, you know, just to enjoy this bodily particular features. Now, if you look at it, Ravana, we'll just end it up, I guess, more 5 minutes, 5-6 minutes. Let's go फटाफट sum up करता, it's already 9. So Ravana, you know, very first thing what he did when he kidnapped Sita was टूर दिया उनको, लंका का टूर दिया अच्छे से। ये मेरा मैंशन है ना, ये मेरी आर्मी है, मेरे पास इतना ऑपुलेंस है, ये चीज दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि फॉर हिम इट वाज नेचुरल कि उसके पास इतनी सारी जो को वाइफ्स थी, उनकी वाइफ एंड को वाइफ ना, तो को वाइफ जो थी वो भी बड़े बड़े देवताओं की, ये सब की पत्नियां थी, जिनको उन्होंने किडनैप करके ही केप्ट हिम इन हिज किंगडम एंड दे वर लिविंग हैप्पीली, अच्छे से रह रही थी, कोई रो नहीं रहा था, सब रह रहे थे उसी एक में। So he thought that, you know, if I show Sita, and she'll also, you know, because he didn't knew the purity of Mother Sita. उनके जो पतिव्रता स्त्री बोलते हैं ना, तो निष्ठा पे उनको पता नहीं था, रावण को ये चीजें पता नहीं थी। He was, for him, you know, what it was, Ravana was thinking, you know, that आत्मवान मन्यते जगत, ये एक श्लोक है, इसका अर्थ क्या है कि मतलब मैं इस वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए आया हूं। तो रावण वाज थिंकिंग द सेम थिंग, ही वाज थिंकिंग दैट, you know, I am supposed to enjoy this world. And what is enjoyment in this material world? If you look, so aishwarya strishu prajeshwar, three things. ऐश्वर्य, opulence, जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे चीजें हो, बड़ी बड़ी चीजें। स्त्रीशु, women या women, MAN and MEN, right? S नहीं लगता कभी भी, plural women होता है, okay? तो एक या multiple, प्रजेश्वर means family member, relative, ये चीजें, right? So everyone is practically, you know, thinking like that. ऐसा क्या कौन सोच रहा है? रावण सोच रहा है कि सभी लोग तो यही सोचते हैं ना। And he thought that Mother Sita will also think in the same manner, वो भी यही same pattern follow करेंगे। But he was, you know, in oblivion, उनको पता ही नहीं था what was Mother Sita. So he said, you know, that everything, वो सब दिखाने के बाद उन्होंने क्या बोला पता आपको? रावण बोला कि ये सब आपका है,
मदर सीता डिनाइड। बोला मतलब अब वो वहां पे मतलब वो बहुत चक्का हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है, रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। वो क्या बोल रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब आप राम से अट्रैक्टेड क्यों, क्या है राम के पास ना, राम के पास क्या रखा हुआ है ये बताओ मुझको पहले। ऑलरेडी किंगडम से निकाल दिया है, जंगल में रह रहा है, ही इज नो मोर देन अ फॉरेस्ट ड्वेलर ना, उससे ज्यादा कुछ है नहीं वो, मेरे पास देखो क्या क्या नहीं है, बस इतनी सारी चीजें आप क्यों नहीं, मतलब आप क्यों डिनाई क्यों कर रहे हो उसको, wasn't able to understand. So similarly, we see in this material world also that for a devotee, जब भक्तों को लोग देखते हैं, भी हमारे इस्कॉन में भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों के आगे टाइटल लगा हुआ है फ्रॉम आईआईटी, बीटेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, इंजीनियर इन सो एंड सो फॉर, लोग भी थोड़ा भौचक्के हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार हमको जॉब नहीं मिल रही, ये लोग के पास जॉब थी, ये जॉब छोड़ करके क्या कर रहे हैं मंदिर में तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन करके, शिखा अलग बियर्ड टाइप का हेयर स्टाइल रख करके क्या कर रहे हैं, कोई बाल बना रहे देखिए। तो अब मतलब सोचिए कि मतलब कैसा, मतलब वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि इसके पास तो सब कुछ था ना, क्यों छोड़ दिया इसने, मेरे पास तो है नहीं, मैं हैंकर कर रहा हूँ उस चीज के पीछे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट प्लेजर इज देयर टू सर्व द लॉर्ड। वो टेस्ट नहीं मिला ना अभी तक, अभी तक वो सेब में ही खुश है, रसगुल्ला अभी तक पता ही नहीं चला। दैट्स द होल पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। व्हाट वी आर सीइंग, द मटेरियल डिजायर्स जो होते हैं ना हमारे, ऑल द मटेरियल डिजायर्स ऑफ अ मैन इज इनकैप्सुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डिजायर टुवर्ड्स द वुमेन। एक व्यक्ति आप देखेंगे ना, जो भी कुछ कर रहा है ना, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा घर बना रहा है, अच्छी गाड़ियां ले रहा है, मेहनत कर रहा है डे एंड नाइट ना, अच्छा अपीयरेंस रख रहा है, जिम जा रहा है, सब कुछ कर रहा है जस्ट टू अट्रैक्ट वुमेन, नो अदर थिंग। आप में से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन उसका सेंटर कोर एक ही है, वुमेन मींस नॉट नेसेसरीली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा माता बहन ना। कोई कोई बोलता है ना मुझको अपने मम्मी को खुश करना है, राइट, मैं उनको खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने परिवार को आगे लेके आना है, ये करना है, ये करना है, मटेरियल डिजायर्स सब इनकैप्सुलेट हो जाते हैं सेंटरिंग अपॉन वुमेन। नाउ इफ यू लुक एट इट, देयर इज दिस वन पास्ट टाइम ऑफ हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज। भक्तिचार्य स्वामी महाराज का आप देखेंगे, भक्तिचार्य स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि ऑल दीज वॉर्स, वो अमेरिका या ब्रिटिशर्स ने अटैक क्यों किया पता है आपको इन इंडिया, बिकॉज दे हर्ड देयर आर वेरी ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया। सोचिए, सिर्फ एंजॉय करने के लिए इतना खर्चा, इतना दिमाग लगाया, उस पार से इस पार आके अटैक करने। अब इससे हम लोगों ने इतनी सारी केस स्टडी देख ली, ये फाइनल लास्ट पॉइंट इज देन हाउ वी शुड बी, हमको कैसा रहना है ना। आपने तो बता दिया वॉर, विमेन, दुर्बुद्धि सब बता दिया, हमको कैसा, सो वी आर टू बी लाइक लक्ष्मण, होल पॉइंट। बहुत सारे लोग अपने आप को देखेंगे सोशल मीडिया पे, कपल्स अपना अपना फोटो डाल रहे हैं, बिकम माय राधा, वो बोल रहा है बिकम माय कृष्णा, बिकम माय राम, बिकम माय सीता। यू कांट बिकम दैट। रावणा वांटेड टू बिकम राम, राइट, क्या हुआ, 10 सर थे उसके पास, 10 क्या बहुत सारे थे, सब कट गए, हमारे पास तो एक, हम एंजॉय करने की कोशिश करें। सो वी शुड बिकम लाइक लक्ष्मण, सर्व द लॉर्ड, सर्व मदर सीता, सर्व द मीनियल सर्वेंट। तुच्छ सेवक बोलते हैं ना, छोटा सेवक, मतलब कभी कभार आज के समय में सेवक मास्टर से भी बड़े हो जाते हैं, पीएम का रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट उससे भी बड़ा हो जाएगा। ओके प्रभु, we'll take the question जितेश टू। ओके, सो आप देखेंगे ये चीजें चल रही है बाहर, you have to become like अर्जुन। अर्जुन ने भी बहुत सारा दिया ना कि ये मेरे दादाजी हैं या ये सारे लोग हैं, बैटलफील्ड में कैसे मारूं, बट देन आफ्टर भगवत गीता he became subservient for the war, right, for Krishna। सो हमको उस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करना है, उस हायर प्रिंसिपल पे वर्क करना है, राइट। सो दैट इज द मेन पॉइंट, दैट वाज द क्रक्स कि हमको बनना क्या है, हमको चाहिए क्या। ओके, सो we'll conclude with this thing। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, अभी यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है क्या? ओके, सो जितेश प्रो विल टेक योर क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, मैं कहना Yes, चाहता हूँ, we
have definitely tried to be Arjuna and also Lakshman. Huh? The women should also try and be Sita, right? The women should also try and be like Sita. The thing is that we are having session for boys, इसके लिए पोस्टर में लिखा था only boys. प्रो जी बोल रहे हैं that you know it is good. आप लोगों को जिसको नहीं सुनाई दिया, प्रो जी बोल रहे हैं कि yes, you know that what you are telling is correct, that we should try to become like Arjuna and you know like Lakshmana, but shouldn't women also try to become like Sita? ऐसा बोल रहे हैं प्रो जी. See, that is a different psychology, you know. We can't instruct someone. मतलब हम यहाँ पे जो है, we can instruct someone who's having the same mindset, right? अभी रावण को भी तो बहुत लोगों ने गाइडेंस दिया था ना, काउंसिल दी थी, विभीषण ने दिया था, मंदोदरी ने दिया था, उसकी प्रिंसिपल क्वीन, कि भाई मत रहो इसके पीछे, चले जाओ ना, ये सारी चीजें मतलब क्यों, मतलब आपको सीता क्यों चाहिए, छोड़ दो सीता को, विनाश कर देगी, इस मतलब विनाश का कारण बनेगी, उसको वो तक श्राप याद दिलाया गया था जो उसको मिला था कि ऐसा कुछ होगा अगर आप किसी भी स्त्री को ये सारी चीजें, तो उसको पता था, उसको भी इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी अच्छी काउंसिल दी लोगों ने, बट जो नहीं बना उस चीज के लिए, जो अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, यू कांट से यू नो दैट, फोर्स नहीं कर सकते आप उसको, भगवान ने भी हमको फ्री विल दिया ना इसके लिए, भगवान ने भी भगवत गीता बोलने के बाद में क्या बोला, अर्जुन को यथा इच्छसी तथा कुरु, जब भगवान ही कोई चीज फोर्स कर रहे हैं हम आप कौन हो सकते हैं ना, there is you know learning for women also, they can take it, they'll get from their parents, but अभी आप सोचे हम लोग जाकर के बोले कि नहीं आप सीता जैसी हो, अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग किसी को फोर्स नहीं करेंगे आप लक्ष्मण बनो आप अर्जुन बनो, हम लोग बोले हमें बनना चाहिए वैसे, राइट जितेश, तो आपने जो पॉइंट रखा दैट इज बहुत करेक्ट पॉइंट है, बट इसमें इंडिविजुअल विल भी होती है ना कुछ, ओके प्रभु. So, one more question. So what happens is, even if we try to protect a woman, they say, "Why are you being like that? So what do you want to do?" So Prabhuji is asking that you know that if we try to control, or you know, practically control won't be a right word. If we try to instruct a woman, right? कि मतलब ये चीज गलत है, ये चीज मतलब नहीं करनी चाहिए हमको. This is instruction pro ना, right? This is what you are telling. कि Not अगर totally. आप उनको बताएं कि ये चीज आप गलत कर रही हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, या समझ लीजिए आजकल सामाजिक लौकिक दृष्टि से कपड़े पहनने का स्टाइल पकड़ लीजिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, तो आप किसी को यदि बताएं वो उससे क्या बोलते हैं ना डिसएग्री करें, राइट? ऐसे ही कुछ जितेश प्रो. General behavior, ओके, not just sports, behavior. दैट इज आल्सो वन थिंग, यू नो, हम लोग उसमें भी कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज सेम एग्जांपल ले लीजिए ना, रावणा का, उसको इतनी अच्छी गुड काउंसिल मिली, नहीं लिया उसने, सर्वनाश का कारण बना आगे चल के, तो हमें अपने आप का सुधार पहले करना है ना, दैट इज द मेन पॉइंट, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स फर्स्ट, हमारा एग्जांपल देख करके लोग फिर अपने आप को बदलेंगे, राइट? दैट इज द मेन थिंग जितेश, ओके. Right. So Prabhuji, one more thing. Ram wanted to protect Sita, he said, and Ravana wanted to. रावण वांटेड टू एंजॉय मदर सीता. Hare Krishna, Prabhu. ओके, सो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, किसी का नहीं? ओके, सो विल एंड, अगर इसमें से आपको कुछ भी ऑफेंसिव लगा होगा, सो आई विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः.